Hello students, welcome to my new video. In this video we will start the new lesson from civics, diversity in India, and this is the first lesson from civics. Okay, and students, you should take your assisted textbook and you have to open your page number 205 from your textbook for this video and open your part 3, okay, section 3 from your textbook, social and the political life. Got it? Diversity in India. There are some words and their meanings. First word is here. Which is the first word? Discrimination means to make an unjust distinctions in treatment of different categories of people. मीन्स किसी भी एक पर्सन की साइड लेना, ओके, ग्रुप बोलो या पर्सन्स बोलो, उसकी साइड लेना, उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना. व्हाट इट इन हिंदी? डाइवर्सिटी, अ वैरायटी, ओके, मीन्स डिफरेंट थिंग्स. देन लाइफस्टाइल, द वे ऑफ लिविंग, ओके, रहन सहन आएगा इसमें, लाइफस्टाइल में. देन मोनास्ट्रीज, 1 minute, diversity, lifestyle, then monasteries means communities of monks living under religious laws. communities means ये communities हम group को बोलेंगे, okay, group of people. and monks means ब्रह्मचारी, जो भी unmarried persons रहते हैं अंडर द रिलीजियस वॉज. वॉज मीन्स हम इसे ओथ भी बोल सकते हैं, बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, ओके. मीन्स प्रतिज्ञा कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को फॉलो करते हैं ये लोग और ये एक साथ रहते हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड द मोनास्ट्रीज. गॉट इट? द स्टेपल. नेक्स्ट इज हियर स्टेपल, मेन और इम्पॉर्टेंट, सॉरी, ओके. स्टेपल मीन्स मेन और इम्पॉर्टेंट. देन ट्रेडिशन, a long established custom or belief passed on from one generation to another. You know, these are the customs. Customs means रीति रिवाज, ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये पास होते जाते हैं, इसे हम बोलेंगे ट्रेडिशंस. इन हिंदी परंपरा. गॉट इट? नाउ कम टू द लेसन. देयर इज अ पिक्चर ऑफ डाइवर्सिटी on page number 205. We are similar in some ways and quite different from each other in some other ways. And you know students, we are similar in some ways means everybody has two hands, two legs, two eyes, one nose. In this way we are similar, okay, and everybody can talk but in different languages. Got it? So there are some similarities and some differences among us. Got it? Age, physical abilities, gender differences, belief, religions and languages make us distinct and unique from each other. And which are the differences among us? Age, हम एक दूसरे से एज से अलग है. देन फिजिकल एबिलिटीज़, ओके, एक पर्सन कुछ कर सकता है तो दूसरा वो कर नहीं सकता फिजिकली. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल खेल सकता है तो दूसरा क्रिकेट खेल सकता है. गॉट इट? जेंडर डिफरेंसेस मीन्स कुछ गर्ल्स है तो कुछ बॉयज़ है. बिलीफ्स मीन्स हम पर्टिकुलर किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी भी गॉड को फॉलो करते हैं. अलग अलग लोग अलग अलग गॉड्स को फॉलो करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द बिलीफ. रिलीजन्स, यू नो, डिफरेंट पीपल follows the different religions like Muslim, Sikh, Hindu, Christian. Got it? And languages, there are different languages in different region in our India. Got it? That's why there are the differences among the people. And all these things make us distinct and unique from each other. और ये सभी चीज़ों की वजह से हम एक दूसरे से अलग है. and unique means निराले, ओके, अलग.
then open your page number 206. Diversity. Next topic is diversity. You know diversity? Diversity is the range of many people or things very different from each other. Means बहुत सारे लोग हैं और वो एक दूसरे से अलग अलग हैं. Got it? That is called the diversity. Diversity means in Hindi vividata. Differences help us to learn from one another and similarities help to share. And there are differences and there are similarities among us. And what is the use of these differences? Differences help us to learn from one another. मीन्स एक दूसरे से कुछ हम सीख सकते हैं. अगर हमारे फ्रेंड्स हमसे अलग है तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और वो हमसे कुछ सीख सकते हैं. ओके. एंड सिमिलैरिटीज़ हेल्प टू शेयर. और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी कैसे हेल्प करती है? हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं. एक दूसरे का जो भी है, जो भी थिंग्स है, जो भी है, तो वो हम शेयर करेंगे. India is an example of diverse cultures and traditions. And in our India, there are the different cultures and different traditions also. And you know, traditions. What is the meaning of these traditions? We have learned here in the beginning of this lesson. What is the meaning of the tradition? A long established customs or belief passed ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो भी कस्टम्स पास होते हैं उन्हें हम बोलेंगे ट्रेडिशंस, परंपरा. ओके. एंड इन आवर इंडिया देर आर डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस. इवन दो इंडिया शोज डाइवर्सिटी, वी इंडियंस आर यूनाइटेड. एंड इन आवर इंडिया देर इज डाइवर्सिटी बट Indians are united. Okay. Both similarities and differences bring an interesting variety into our lives. And जो भी similarities है और जो भी differences है उसकी वजह से interesting varieties आ चुकी है अपने life में. Okay. Diversity is nature's way of grooming us to adjust, learn and coexist. And ये जो भी डाइवर्सिटी है इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का कुछ लर्न कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं. Got it? About the diversity. Now, reasons behind diversity. Next topic is here, reason behind diversity. The reason behind the diverse nature of our country is its geography. And which is the main reason behind the diversity? ये diversity क्यों है अपने इंडिया में? Because of the geographical condition. India has mountains, rivers, thick forest and oceans. And do you know about the landforms of our India? There are the mountains. Okay. Somewhere there are mountains. Mean northern India there is a mountains and rivers. Okay. There are different rivers also in our India. Thick forest and oceans. ये सभी चीज़ें अपने इंडिया में मौजूद है. ओके. इन ओल्डन टाइम्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वर ऑलमोस्ट एब्सेंट. एंड इन अर्लियर पीरियड, इन एंशियंट पीरियड, वी हैव स्टडीड अबाउट द एंशियंट पीरियड इन हिस्ट्री. ओके. देर वर नो कम्युनिकेशन, देर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ पे व्हीकल्स नहीं थे. वो कैसे जाते थे? पैदल. तो वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम होता था एंड जो भी कम्युनिकेशन था वो भी बहुत ही कम होता था. कम्युनिकेशन मीन्स फॉरवर्ड द मैसेजेस. ओके. सेंड द मैसेजेस. दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन.
ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वॉज नेवर ईजी. ओके, जो भी ट्रैवलिंग था वो ईजी नहीं था. People took days or months to travel on horseback or camels and many times on foot. और लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे? हॉर्स बैक एंड कैमल्स के पीठ पे या हॉर्स के पीठ पे. Earliest humans moved from one place to another place with their animals and many times on foot also, because there were no facilities like us, like a car, aeroplane, railway. Okay, अपनी जैसी facilities वहाँ पे नहीं थी, traveling facilities. As a result, the people settled in a region and stayed on there for a long period of time. और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग एक ही रीजन में सेटल्ड होते गए. एंड जो भी वो ट्रैवलिंग करते थे तो एक ही प्लेस पे वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पे वो रुकते भी थे. ओके, दे डेवलप्ड देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन. और उन्होंने अपनी लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन को डेवलप किया. दिस इज़ हाउ एवरी रीजन वॉज रिच इन इट्स आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर. और जो भी रीजन थे वहाँ पे हर एक रीजन ने अपना आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर को डेवलप्ड किया है. फूड हैबिट्स वर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फूड ग्रोन एंड स्पाइसेस यूज्ड. और जो भी फूड हैबिट्स वहाँ पे थी लोगों की, ये जो फूड ग्रोन होते थे, मीन्स जो भी ग्रेन्स वहाँ पे ग्रो होते थे उसके बेस पे फूड हैबिट्स डेवलप्ड होती गई. और जो भी स्पाइसेस वहाँ पे यूज़ किए जाते थे उसके आधार पे भी फूड हैबिट्स डेवलप्ड होती गई. फॉर एग्जांपल, पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट वेर आइदर फिशरमैन और ट्रेडर्स एज द सी ऑफर्ड फिश एंड बिजनेस थ्रू वाटरवे. एंड जो भी कोस्टल एरिया था, कोस्टल रीजन मीन्स, कोस्टल एरिया मीन्स जो भी ओशन, जो भी सी रहता है उसका किनारे पे जो भी लोग रहते हैं उन्हें हम बोलेंगे कोस्टल एरिया में, कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग. ओके, तो जो भी वहाँ पे लोग रहते थे, एक तो फिशरमैन थे, नहीं तो ट्रेडर्स थे, क्योंकि जो भी ओशन, जो भी सी वहाँ पे थे वो वहाँ पे बिजनेस कर सकते थे या फिशरमैन थे. ओके, सो फिश बिकेम द स्टेपल डाइट. और इसलिए जो फिश थे ये स्टेपल डाइट उनका बन चुका था. स्टेपल डाइट किसे बोलेंगे हम? मेन फूड. जैसे हम चपाती खाते, चपाती एंड राइस आर द मेन फूड. ओके, अपना जो भी मेन फूड है, स्टेपल फूड है, क्या है? चपाती मीन्स वेट, ज्वारी या राइस. ओके, तो वैसे वहाँ का स्टेपल फूड क्या था? कोस्टल एरिया का फिश. ओके, अलॉन्ग विथ राइस, उसके साथ वो राइस खाते थे. टोपियोका, दिस दैट इज ऑल्सो वन फूड. कोकोनट्स एंड बनानास. ओके, दिस गेव राइज टू अ डाइवर्स कल्चर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स. एंड इसकी वजह से जो भी कल्चर है ये डाइवर्स बनता गया, क्योंकि रीजन वाइज फूड हैबिट्स डेवलप होते गए, रीजन वाइज उनका लाइफस्टाइल डेवलप होता गया, एंड रीजन वाइज लैंग्वेज डेवलप होती गई. उसकी वजह से जो भी डाइवर्सिटी है ये यहाँ पे इस्टाब्लिश होती गई. द हिस्ट्री ऑफ पीपल, हिस्ट्री ऑफ प्लेस इज द स्टोरी ऑफ सच generation that settled down in the different places and enrich the culture and tradition. And similarly, the climate of a place also gives rise to diversity. And जैसे geographical condition responsible है डाइवर्सिटी के लिए, मीन्स जो भी जोग्राफी रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी के लिए, वैसे ही क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी के लिए. ओके, climate influence clothing, food, dance, music and other aspects of human cultural life. And this climate is also affect on the clothing, means according to climate we wear the cloth. And climate affect on the food, dance and music also, means
फूड हैबिट्स भी क्लाइमेट पे ही डिपेंड रहती है. एंड इफ विल गो टू कश्मीर, ओके, तो कश्मीर में हमें जो भी डांस, जो भी म्यूज़िक, जो भी उनके फूड हैबिट्स है, उन के क्लॉथ्स है, ये हमें अलग मिलते हैं. ओके. अगर हम राजस्थान जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें ये सभी चीज़ें अलग मिलती है. इन दिस वे दिस क्लाइमेट अफेक्ट ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. गॉट इट. मीन्स कश्मीर का जो भी क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे जो भी लाइफस्टाइल है ये अलग रहेगा लोगों का. और जो राजस्थान है यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही हॉट एंड ड्राई होने की वजह से यहाँ का लाइफस्टाइल अलग रहेगा. गॉट इट. देन इकोनॉमिक डिफरेंसेस. यू नो इकोनॉमी मीन्स पैसा, मनी. ओके. Economic differences between people mean the differences in amount of money or wealth they have. And इकोनॉमिक डिफरेंसेस किसे बोलेंगे हम? जो भी अमाउंट रहता है, पैसा रहता है, जो भी वेल्थ रहती है लोगों के पास, ये अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रहती है. किसी के पास बहुत सारी रहती है तो उसे हम रिच पर्सन्स बोलेंगे, और किसी के पास कम रहती है तो उसे हम बोलेंगे पुअर. ओके. People are poor if they have little money, which is not enough to give them food and decent life. और जो लोगों के पास बहुत ही कम अमाउंट रहता है, बहुत ही कम पैसा रहता है, उसे हम बोलेंगे पुअर पर्सन्स. ओके. पुअर पीपल. और इनका जो भी लाइफ रहता है वो बहुत ही पुअर रहता है, और उन्हें जो भी खाने को मिलना चाहिए ये भी इन्हें पूरा नहीं मिलता. The differences in the amount of money are visible in differences in cloth, lifestyle and even food habits also. Okay. जो भी डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये हमें दिखाई देते हैं कि जो भी क्लॉथ्स है गरीब लोगों के अलग रहेंगे कपड़े, अमीर लोगों के बहुत ही पॉश रहेंगे. उनका जो भी लाइफस्टाइल है, अमीर लोगों के घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहेंगी, थिंग्स रहेंगी. ओके. एंड ये जो पुअर है इनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होंगी. ओके. तो ये हमें दिखाई देता है. जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी क्लॉथ्स है, फूड हैबिट्स भी अमीरों के अलग रहेंगे, रिच पर्सन्स के, और गरीब लोगों के अलग रहेंगे. इकोनॉमिक डिफरेंसेस लीड टू इनइक्वालिटी, मेकिंग सम पीपल रिच एंड मेनी पुअर. एंड ये जो भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस है इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है. कुछ लोग अमीर बन रहे हैं तो कुछ लोग गरीब हो रहे हैं. गॉट इट. तो ये गरीब और अमीर की वजह से, रिच एंड पुअर की वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है. गॉट इट. एंड दिस इज द मेन रीज़न फॉर डाइवर्सिटी, economic differences. Then second is here social differences. 1 minute. Social differences. We have to study about this. Caste system and gender bias are two major social differences. And which are the social differences? Caste system. There is a caste system in our society. Okay. And gender bias means gender discrimination between girls and boys, men and women, that is called the gender bias. What it? They create inequality in the society, and because of these caste system, because of this gender bias, create the inequality in society. Caste system in India became the evil when the society was divided into caste during ancient times. And when this caste system formed here in our India in earliest period. Okay. Ancient time. And in ancient time our society divided into 4 groups. Okay. And this caste system became the evil in our India.
For instance, a person born into a cleaner's family could not rise to the position of a teacher. And यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर क्लीनर्स के फैमिली में कोई पर्सन बॉर्न होता है तो वो टीचर की पोजीशन नहीं ले पाता था इन अर्लियर पीरियड. ओके. आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट मेड लॉज टू show that all human beings are born equal and they should enjoy equal opportunities. And before independence there were very difficult condition because of these caste system in our society, but after independence our government made some laws for people. Okay. And through these laws they shown here all human beings are born equal, sabhi log equal hai, and दे शुड एन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही चाहिए. ओके. बट इवन टुडे इन मैनी विलेजेस एंड टाउन्स द एविल ऑफ कास्ट सिस्टम इज़ फॉलोड. फिर भी बहुत सारी विलेजेस ऐसे हैं अपने इंडिया में कि यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम अभी भी फॉलो होता है. देयर इज़ अनदर एविल इन इंडियन सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. एंड दूसरा जो भी एविल है, ओके, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिस है अपने इंडिया में, विच इज़ दिस, विच इज़ द अनदर एविल, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. जो भी गर्ल चाइल्ड रहता है, मीन्स जो भी गर्ल्स है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. अ गर्ल चाइल्ड इज़ ट्रीटेड लाइक अ बर्डन. और गर्ल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है कि ये एक बर्डन है पेरेंट्स पे. इवन टुडे इन विलेजेस एंड ऑल्सो इन सम टाउन्स द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट वेलकम्ड. दिस इज़ कॉल्ड जेंडर बायस. इसे ही हम क्या बोलेंगे, जेंडर बायस. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स चाइल्ड एंड स्टॉप्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. but now our government made some laws for girls also. okay, like पीपल जो भी कास्ट सिस्टम थी इसके खिलाफ भी कुछ लॉज यहाँ पे बनाए हुए हैं. लाइक दिस सेम सम लॉज फॉर्म हियर फॉर गर्ल्स ऑल्सो. ओके. नाउ on next page, page number 207, there are MCQs. We have to solve these MCQs here. Okay. First, diversity is nature's way of grooming us to adjust the learn, and A option is here coexist, B co-educate, and the cooperate. A option is the answer here, coexist. Okay. Then second, the geography of our country is an important factor behind our. There are again three options: unity, diversity, tradition, and B option is answer here, diversity. Okay, which is the main reason behind the diversity. There is a geography. Okay, geography is the main reason behind the diversity. Then another reasons are also there, economic differences and social differences. These reasons are also behind the diversity. Okay, because of these reasons create the diversity in our India. Got it? Then next topic is here unity in diversity. Rise in mixed influences. Unity amongst people living in different regions or states came along slowly. To being with the natural disasters like droughts or even wars forced people to leave their homes and settle down in new places. And in earlier period there were natural disasters, means नैसर्गिक आपत्ति, like droughts means सूखा गिरता था वहाँ पे, और इवन वॉर्स. एंड इन अर्लियर पीरियड देयर वर वॉर्स ऑल्सो, युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स पीपल लिव्ड देयर होम्स एंड सेटल्ड इन अ न्यू प्लेस. अ न्यू प्लेस गेव देम अ न्यू लाइफ स्टाइल. ओके,
ये जो न्यू प्लेस थी इसकी वजह से ये जो भी लोग वहाँ पे सेटल होते थे, उन्हें न्यू लाइफस्टाइल मिलती थी एंड कुछ चैलेंजेस ऑल्सो, बट दे एडजस्टेड वेल बाय लर्निंग एंड टीचिंग। लेकिन ये जो भी लोग थे ये वहाँ पे एडजस्ट कर लेते थे, कुछ वहाँ से सीखते थे, कुछ अपना लोगों को सिखाते थे। दिस गेव राइज टू अ मिक्स्ड बैग ऑफ न्यू कल्चर एंड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन डेवलप्ड द मिक्स्ड न्यू कल्चर। ओके, वहाँ पे कुछ मिक्स टाइप कल्चर डेवलप्ड होता गया। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर्स। There were many people visited to our India from other countries, and जो भी उनका अफेक्ट होता था अपने कल्चर पे, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ द पास्ट। इंडियन हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंसेस दैट एडेड टू आवर डाइवर्सिटी। एंड यू नो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पास्ट। एंड जो भी इंडियन हिस्ट्री है ये हमें फॉरेन जो भी फॉरेनर्स विजिटर्स अपने इंडिया में आते थे और उनका क्या अफेक्ट अपने इंडियन कल्चर पे होता था, ये हमारे हिस्ट्री से हमें पता चलता है। इंडिया वॉज विजिटेड बाय फॉरेन स्टूडेंट्स लाइक ह्यूनस्टंग एंड मेनी अदर्स। एंड अपने इंडिया में बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स भी आए थे और उन्होंने विज़िट दी थी अपने इंडिया को। जैसे ह्यूनस्टंग जैसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे, फॉरेन स्टूडेंट्स। दिस फॉरेनर्स ब्रॉट देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस विद देम। और ये जो भी स्टूडेंट्स थे इन्होंने अपने साथ जो भी उनके ट्रेडिशंस थे, कल्चर्स था, ये अपने साथ वो लेके आए थे। दे इन्फ्लुएंस्ड आवर कल्चर एंड वी इन्फ्लुएंस्ड देयर। और ये जो भी फॉरेनर्स थे इनका इफेक्ट अपने कल्चर पे हुआ और अपने कल्चर का इफेक्ट उनके कल्चर पे हुआ। ओके, देयर रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ड्रेसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर लैंड। एंड उनका जो भी उनके जो भी रिलीजन्स थे, लैंग्वेजेस थी, ड्रेसेस, ये सब अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस होता गया। Urdu language was born from the blend of Hindi and the Persian languages. Food and architecture showed the same influence. एंड जो भी फूड, जो भी आर्किटेक्चर है, इससे भी जो पर्शियन अफेक्ट था अपने इंडिया में, ये पता चलता है फूड एंड आर्किटेक्चर से। मुगलाई फूड एंड द आर्किटेक्चरल वंडर्स लाइक ताजमहल आर प्रूफ्स ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंसेस। और ये जो भी आर्किटेक्चरल वंडर्स है जैसे ताजमहल, इससे भी हमें जो पर्शियन इफेक्ट था अपने आर्किटेक्चर पे एंड फूड पे, तो ये पता चलता है। फ्रीडम स्ट्रगल, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, फ्रीडम स्ट्रगल। India's freedom struggle is a best example of unity in diversity. In fact, Pandit Jawaharlal Nehru was the one who gave the slogan Unity in Diversity, which describes India most beautifully. And Pandit Jawaharlal Nehru was first Prime Minister of our India. Okay, and he gave the slogan, which was the slogan of Pandit Jawaharlal Nehru, Unity in Diversity. Our national flag, national anthem, national bird and the national flower are all symbols of this unity. Okay, you know about national flag, Tiranga, national anthem, Jana Mana, national bird, peacock, national flower, lotus. Okay, and all these things are the symbols of unity. Okay. And during British period, British thought that Indian has a diverse background, that's why they could be divided easily. Indians का जो भी backgrounds है ये diverse होने की वजह से ये easily divide हो सकते हैं. But Indians shown that diversity was not a weakness, और Indians ने ये show कर दिया कि जो भी डाइवर्सिटी है ये इनका वीकनेस नहीं था, बट अ सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ.
despite different cultural, religious and regional backgrounds, Indians men and women came together in large number of fight for freedom. एंड जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से था इंडियंस का, इसके बावजूद भी जो इंडियंस मेन और वीमेन थी वो एक साथ आई और ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ वहाँ पे वो लड़ी, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके लिए वो लड़े। दे मार्च एंड स्ट्रगल टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो भी ब्रिटिश रूल थे इनके खिलाफ उन्होंने मार्च निकाले, प्रोटेस्ट निकाले, स्ट्रगल की। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। The 20th century has shown a great deal of progress in communication, technology and transport. And during 20th century, there were great progress in the field of communication, technology and transport. This has made it possible for us overcome geographical boundaries and change our lifestyle. And a global network has been formed, and this global network formed there that links with economies, societies and cultures. Okay, information and ideas are being spread across the world as a result of globalization. And information and ideas, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी आइडियाज़ रहती है, ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। ओके, शेयरिंग होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसे हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। गॉट इट? एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हियर केरला, अ केस स्टडी। एंड दिस इज द नैरो कोस्टल स्टेट इन आवर इंडिया। कोस्टल मीन्स किनारा, ओशन सी का जो भी किनारा रहता है, जो भी एरिया रहती है उसे हम बोलेंगे कोस्टल एरिया। ओके, एंड वेर दिस केरला सिचुएटेड lies between the Arabian Sea and the Western Ghats on the west coast of India. इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ये सिचुएटेड है केरला। ओके, एंड राइस, कोकोनट एंड वेराइटी ऑफ स्पाइसेस ग्रो हियर। और यहाँ पे राइस, कोकोनट और बहुत सारे स्पाइसेस ग्रो होते हैं। स्पाइसेस मीन्स मसाले। एंड in earlier period there were many traders came here for trading. Okay, बहुत सारे ट्रेडर्स थे कि वो अपने इंडिया में आते थे टू ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। Jewish and Arab traders regularly came down to Kerala to trade in spices. Okay, which traders were came there? Jewish and Arab traders. Okay, they were came here regularly. And fishing is also an important occupation. You know occupation means again business. Okay, व्यवसाय बोलेंगे इसे हम। एंड इट सपोर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स यहाँ के बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं, मीन्स बहुत सारे लोग यहाँ पे फिशरमैन हैं। व्हाट इट? केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस and on this Kerala there is a foreign influence, means जो भी foreigners यहाँ पे आते थे, जो भी visitors यहाँ पे आते थे, इसका प्रभाव केरला पे हुआ है, उसका इफेक्ट केरला के कल्चर पे हुआ है। ओके, when we study the history of this state we come to know that Jews, European and Arabs came here to have trade relations. और ये जो भी Jews, Europeans, Arabs यहाँ पे आते थे, ये ट्रेड के लिए आते थे। स्लोली दे सेटल डाउन एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ द रिलीजन्स। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये यहाँ पे सेटल्ड होते गए, एंड जो भी उनके रिलीजन्स थे, इसका जो भी प्रचार था, जो भी टीचिंग्स था, ये स्प्रेड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस एडेड टू द एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट एंड सेंट थॉमस ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू केरला। और ये जो भी सेंट थॉमस थे, इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन लाया केरला में। Vasco da Gama, a Portuguese sailor, also landed on the Kerala coast, and he opened the doors to spice trade between India and the western world. West में
यहाँ से जो भी स्पाइसेस रहते थे ये जाते थे, उनका बिजनेस होता था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इंडिया का। ओके, इबन बटूटा अ मुस्लिम Moroccan traveler has also written about the Muslims living in Kerala। केरला में जो भी मुस्लिम्स रहते थे इसके बारे में ये जो भी थे मोरक्कन ट्रैवलर, मुस्लिम मोरक्कन ट्रैवलर, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस दैट पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। ओके, and all because of all these people, all these visitors, foreigners influenced on the culture of Kerala, and they follow the different religions, variety of religions in Kerala. Okay, people of Kerala. Okay, then we have to study about Ladakh, a case study. Ladakh is a cold desert. Okay, it lies in the mountains in the eastern part of the Jammu and Kashmir। कहाँ पे है ये लद्दाख? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। देयर इज़ नो रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल नहीं रहता। सच डेजर्ट कंडीशन डू नॉट अलाउ एग्रीकल्चर, दो अ फ्यू ट्रीज आर एबल टू ग्रो इन दिस कोल्ड डेजर्ट्स। और यहाँ पे बारिश न होने की वजह से एग्रीकल्चर नहीं रहता और कुछ बहुत ही कम ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं। People depend on the melting snow during the summer months for drinking water। और समर में जो भी मेल्टिंग स्नो रहता है इस पे डिपेंड रहते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, जो भी वाटर चाहिए समर में पीने के लिए, तो ये कहाँ से यूज़ करते हैं यहाँ के लोग? लद्दाख के जो भी मेल्टिंग आइस रहता है, मेल्टिंग स्नो रहता है, इस पे डिपेंड रहते हैं। ओके, द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ के लोगों का लाइफ। वीट एंड बार्ली आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। और वीट एंड बार्ली मेन क्रॉप्स हैं यहाँ के। एप्रिकॉट्स आर ऑल्सो ग्रोन एंड एक्सपोर्टेड। पीपल मेनली डिपेंड ऑन शीप, गोट, काऊ एंड याक रियरिंग। और यहाँ पे जो भी एनिमल्स है लाइक शीप, गोट, काऊ एंड एग, इनका रेयरिंग किया जाता है, इनका डोमेस्टिकेशन किया जाता है। ओके, द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पैश्मीना वूल। एंड जो भी शीप है ये बहुत ही स्पेशल है ये रीजन में। वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस पैश्मीना वूल। जो पैश्मीना वूल है ये बहुत ही कॉस्टली रहता है और ये जो वूल है ये शिप्स यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। पैश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम इट। और जो भी पैश्मीना शॉल्स रहती है बहुत ही कॉस्टली रहती है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी की रहती है, ये यहाँ पे बनाई जाती है। The wool from the sheep is collected by the people and sold to the काश्मीरी ट्रेडर्स। और यहाँ पे जो भी ऊल रहता है शिप का ये कलेक्ट किया जाता है और काश्मीरी ट्रेडर्स को बेचा जाता है। द लद्दाख रीजन हैज़ मेनी पासेस थ्रू विच कैरावन्स ट्रैवल टू तिबेट। दिस कैरावन्स कैरी टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड द कारपेट्स। एंड यू नो caravans means in earlier period there were no vehicles, no traveling facilities. That's why people, especially traders, move from one place to another place with their animals gatheredly। ओके, ग्रुपली वो मूव होते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, जो भी ट्रेडर्स, जो भी मर्चेंट्स रहते थे ये। और ये एक रो में मूव होते थे, लाइन बनी रहती थी उनके एनिमल्स के साथ, उनकी जो भी वैल्यूएबल थिंग्स रहती थी उसके साथ ये ग्रुपली मूव होते थे। और ये जो भी लाइन रहती थी उनकी रो रहता था उसे कैरावन्स बोलेंगे। ओके, एंड ये जो भी कैरावन्स यहाँ पे रहते हैं लद्दाख में, तो उसके साथ वो क्या क्या लेके चलते हैं लोग? टेक्सटाइल्स मीन्स क्लॉथ, ओके, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ओके, द कल्चर ऑफ लद्दाख इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ इंडियन एज वेल एज तिबेटन ट्रेडिशन। और यहाँ का जो भी कल्चर है ये मिक्स है लद्दाख का।
इंडियंस और तिबेटन ट्रेडिशंस यहाँ पे मिक्स है. तिबेटन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन फूड, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर. और जो भी तिबेटन है, तिबेट से आए हुए लोग, इनका जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी प्रभाव है, उसे इफेक्ट बोलेंगे हम. ये यहाँ के फूड, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर में दिखाई देता है. Therefore, Little Tibet is another name for Ladakh. ओके, लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? लिटिल तिबेट. बुद्धिज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द स्टेट, एंड दिस बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन इन लद्दाख. ओके, एंड ये जो भी बुद्धिज्म है, रिलीजन है, ये लद्दाख से होके ही तिबेट पहुंचा था. Diversity in India has given us a rich taste of life. Our languages, monuments means historical buildings, and dresses and way of life clearly show a mixture of influences. Okay. Now our lesson is completed here. Students, you should read this lesson and understand it also. Okay. Have a good day, and you have to write the question and answers after this video in your notebook. Got it?